तो बच्चों हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, that means when force is applied at an object and the object rotates. Now we can observe the motion of rotation of an object in two different cases. Just observe the motion of the rotation of two objects. First I am taking this ice cream stick and I will hold this stick at one end, and then I will apply a force. Now as I told you that we can represent the force with help of an arrow. The head of the arrow represents the direction in which the force is applied, and the tail of the arrow represents the point where that force is applied. But as I told you earlier also that if we are applying force of push, then sometime we use this arrow like this. That is, the point of application is this, and we place the arrow of the head of the arrow at the point of application. Anyway, let us observe this ice cream stick. I am holding it here and I am applying a force at one end of the string, this stick, and just observe what is happening. The object, that is the ice cream stick, is rotating about the point where I am holding it. I just want to explain you that in this case, the stick is not free to choose its point of rotation. I am holding it here, so it has to rotate about this point. Apply the force and it has to rotate about the point where I am holding it. This is one type of rotation where the stick is having no choice to select its point of rotation. It's given to the stick with this hinged point and the application of force. The stick is forced to rotate in a particular way. Now the same stick and I don't hold it anywhere. I'm just applying force at two different points of the stick, at one point here and the other point here, and just observe the motion. Again it is performing rotational motion, but this time can you tell me the point about which it is rotating? Take one more example of this pencil. Now I am applying force on this pencil in the same way. One force is applied at one end, other force is applied at other end, and just observe the direction of the forces. This force is pushing the pencil this way, and this force is pushing the pencil this way. But the pencil is moving, rotating anti-clockwise. Can you observe this motion? These two forces are parallel to each other. You can see these two forces are parallel to each other. These two forces are opposite to each other, and they are applied at two different points of the object, that is the pencil. And the pencil is rotating. Now I want to ask you, do you have any idea what is the point of rotation of the pencil about which this pencil is rotating? This is what I want to observe you. This is what I want you to observe, and this is what I want to explain you. That when this pencil is free to rotate, then it always rotates about a point which is called center of mass or center of gravity of this pencil. Listen to me again. I'm saying that if I'm holding this pencil at one side and then I'm applying force, this pencil does not have choice. The point of rotation is already given to it, that is this point.
But if this pencil is having a choice, it is free to rotate about any point, and then we apply the force. It will always rotate about a point which is called center of mass of the pencil or the object. This is what I want you to understand. This pencil is almost of uniform thickness. So, the point which is at the center of this pencil is called center of mass or center of gravity of this pencil. Now, center of mass or center of gravity is not our major concern right now. So, I just want to give you an introduction that this whole pencil is pulled by the gravitational force. This whole pencil can be thought of made of small particles, and every particle has some mass, and every particle is pulled by the earth in downward direction. इस बात को एक बार फिर से समझो, ये पेंसिल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ऐसा हम मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं? ऐसा है, हर पार्टिकल एक छोटा मास है, उस मास को अर्थ अपनी ओर पुल कर रही है विद द फोर्स mg। तो ये पेंसिल का हर पार्टिकल नीचे की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट फोर्स देखें कि भाई इतने सारे पार्टिकल्स को जब अर्थ नीचे पुल करती है, तो क्या हम ऐसा पता कर सकते हैं कि सारे फोर्सेस का कोई एक रिजल्टेंट फोर्स हो जो इस पेंसिल पर हम कह सके कि इस डायरेक्शन में इतनी फोर्स से टोटल अर्थ इस पेंसिल को पुल कर रही है? मान लो 1 न्यूटन के फोर्स से हर पार्टिकल को अर्थ नीचे पुल कर रही हो और ये 100 पार्टिकल्स से पेंसिल बनी हो, तो 100 पार्टिकल्स को 1 न्यूटन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो टोटल नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। एक सिंपल कैलकुलेशन करके तुम्हें समझा रही हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, कि इस पेंसिल को हम मान लें कि 100 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और हर पार्टिकल को अर्थ 1 न्यूटन के फोर्स से नीचे पुल कर रही है। तो हर पार्टिकल का 1 न्यूटन ऐड होगा तो टोटल 100 पार्टिकल्स हैं, तो 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है इस पेंसिल पर। ये मतलब है पेंसिल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में से मिलकर बना मानकर और इस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कुल कितना लग रहा है पता करने का ये एक टेक्निक है, एक तरीका है। अब वो जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उस पर 1 न्यूटन यहाँ लग रहा है, उसके बगल वाले पार्टिकल पर 1 न्यूटन यहाँ लग रहा है, उसके बगल वाले पार्टिकल पर 1 न्यूटन, उसके बगल वाले पार्टिकल पर 1 न्यूटन। तो हर पार्टिकल पर थ्रू आउट द लेंथ 1 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। हमने कहा कि इस पेंसिल में 100 पार्टिकल हैं, तो 100 पार्टिकल को टोटल 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो वो जो 100 न्यूटन का फोर्स है उसको मैं इस पेंसिल के सेंटर पर ऐसा मान सकती हूँ कि जैसे इस पेंसिल के सेंटर पर 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ये एक टेक्निक है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम इस बात को समझो कि टोटल फोर्स जो इस पेंसिल के हर पार्टिकल पर लग रहा है, उस टोटल फोर्स को हम इस पेंसिल के सेंटर पर अप्लाइड मानते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि पेंसिल के सेंटर पर अर्थ उसको नीचे की ओर खींच रही है विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन if 100 particles are there and every particle is experiencing 1 Newton force in same vertically downward direction. अब इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बात पूरी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके पास एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट को
कितनी ताकत से घुमाया जा रहा है। तो अगर ऐसा यूनिफॉर्म थिकनेस का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर वी टेक द force of earth, that is gravitational pull, to act in vertically downward direction। सी ये है अर्थ का पुल, इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको सेंटर पर हमने नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड लगा रखा है। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर इसको मैंने अप्लाई किया है, ये सेंटर पर पेंसिल के अर्थ का पुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और जिस पॉइंट पर ये अप्लाइड है ये पॉइंट जो है वो इस पेंसिल का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो और अब एक बार इस पेंसिल का मूवमेंट, रोटेशनल मोशन एक बार फिर गौर से देखो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्री टू रोटेट and it is rotating, then it will always rotate about its center of mass। सी ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है और उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बहुत फाइन डिफरेंस के साथ दो अलग अलग टर्म हैं, हम उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के पीछे असल में क्या लॉजिक लग रहा है। पर अब हम वापस अपने रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स पे आ जाते हैं। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चिंता नहीं करते। हमने दो तरह के रोटेशनल मोशन देखे, एक जब हम उस पॉइंट को ये बताते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट घूमो तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और दूसरा जब हम पॉइंट को फ्री छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन चुन लो, और तब ये हमेशा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घूमता है। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स में तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेकंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैंने इसको यहाँ से होल्ड किया और मैंने इस जगह पर फोर्स अप्लाई किया तो जहाँ फोर्स अप्लाई किया दैट विल बी पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर मैंने इसको यहाँ अप्लाई किया तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो कौन कौन से तीन फैक्टर हो गए किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन में? पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है इसका, इसको मैं कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में ले आऊं तो यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और सेंटर पॉइंट है पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस वन, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज दिस इज डी परपेंडिकुलर। तो तीनों फैक्टर हमने समझ लिए। जो फोर्थ फैक्टर एक और है, दैट इज एंगल एट विच दिस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। अभी तो मैं इसको देखो ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उसके बीच ये लेंथ जो है, ये डिस्टेंस जो है, वो और ये फोर्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंगल देखो 90 डिग्री। लेकिन हम इस फोर्स को इस तरीके से किसी एंगल पर भी पेंसिल पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं, किसी एंगल पर। तब एक अलग केस रोटेशनल मोशन ऑफ द पेंसिल,
तब उसको एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितनी ताकत से पेंसिल को घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे क्लास 10th के सिलेबस में केवल यही एक केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डी परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर फोर्स लगा के घुमाते हैं। यही एक केस, सिंपल केस हमारे सिलेबस में है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि अगर किसी एंगल पर ये फोर्स लग रहा होता तो ये कितनी ताकत से घुमाया जाता। ठीक, हमें एक ही केस के बारे में पता करना है। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक बात, एक कॉन्सेप्ट मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो लाइन है, जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली इसका जो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो टेल है वो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर वो फोर्स अप्लाइड है। लेकिन अगर पुश का फोर्स है तो कई बार हम एरो के हेड को उस पॉइंट पर लगा देते हैं जहाँ वो अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कितनी ताकत से फोर्स इस पेंसिल को घुमा रहा है, ये किस तरीके से इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हम कैसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी इस फोर्स के रोटेट करने की ताकत को, रोटेट कराने की ताकत को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज आइसक्रीम स्टिक. I was holding stick at this point. So this is point of rotation and the point of application of force is this point. Let me mark it also. Point of application of force is this point. So distance between point of rotation and point of application of force, not only distance, perpendicular distance is d perpendicular. And when we are supposed to calculate the torque of the force, torque means the capacity of the force or the strength of the force to rotate an object, that is called torque or movement of force or turning capacity of force. So when we are supposed to calculate turning effect of this force, which is represented with the quantity torque tau, then it is force applied into this d perpendicular, right? So we just have to substitute the value of d perpendicular and the force, and we will come to know that with what strength this force is rotating this stick about this point. Now come to the case of pencil. In case of pencil, the pencil was free to move, rotate. So when the two forces are trying to rotate it, it always rotates about center of mass. So d perpendicular will be from the point of rotation to the point of application of force, which is this point. So between these 2 points, the perpendicular distance, always remember, it's not simple distance, it's perpendicular distance between these 2 points is d perpendicular. So if force F is applied, then this time the torque of force F is force into d perpendicular. But see here, there is a little difference. Here, this force is helping this pencil to rotate about center of mass, and this force is also helping the pencil to rotate about center of mass. So actually, the contribution of this force plus contribution of this force will give you turning effect of force here. So turning effect of force 1. इसको भी मैग्नीट्यूड इसका भी F न्यूटन ही है,
तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ, लेकिन नाम हम इसको F1 दे देते हैं, तो F1 का जो टर्निंग इफेक्ट है वो ये है। और अगर इसे नाम F2 दे दें, मैग्नीट्यूड इसका भी F ही है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ F2 इज फोर्स इनटू डी परपेंडिकुलर। और दोनों ही टॉर्क अब ऐड होकर टोटल टर्निंग इफेक्ट ऑफ दी टू फोर्सेस देंगे। तो हम यहाँ पे देखो कैसे लिख रहे हैं, नेट टर्निंग इफेक्ट और रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, F1 F2 दो फोर्स हैं यहाँ, तो टॉर्क नेट लिखेंगे इज इक्वल टू, जो F1 का टॉर्क था उसको अगर हम टाउ 1 कहें और F2 का टॉर्क था उसे टाउ 2 कहें, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इस पेंसिल को टोटल टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करके देगा। तो ये हो जाएगा F इंटू डी परपेंडिकुलर प्लस F इंटू डी परपेंडिकुलर। तो अब ये हमें मिलेगा, देखो, ट्वाइस F इंटू डी परपेंडिकुलर। ठीक, अगर आप F को अलग लिखो और 2 इंटू डी परपेंडिकुलर को एक साथ लिखो, तो देखो D perpendicular for F1 is this and D perpendicular for F2 is this। क्योंकि ये सेंटर है पेंसिल का, सेंटर ऑफ मास, तो असल में ये आधी पेंसिल की लेंथ है और ये आधी पेंसिल की लेंथ। तो अगर इस पेंसिल की लेंथ या इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर L हो, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे कि इसके जो दो फोर्सेस हैं वो जिन दो पॉइंट्स के बीच लग रहे हैं उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर L है, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आया, ये टर्निंग इफेक्ट दो फोर्सेस का है और इसको हमने लिखा कोई भी एक फोर्स इनटू L। इसको और अच्छी तरह से लिखें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इस केस में और इस केस में कैलकुलेशन में कैसा डिफरेंस है ये समझ आ रहा है। एक फोर्स लग रहा है तो सिर्फ एक फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा और वो सिंपल F इंटू डी परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेस हैं। इन दो फोर्सेस की वजह से जब टॉर्क लगेगा तो हमको दोनों फोर्सेस के टॉर्क को कैलकुलेट करके उनको ऐड करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाइड केस है क्योंकि क्लास 10th में हमको बस एक ही तरीके का टर्निंग इफेक्ट देखना है जबकि फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नॉर्मल लग रहा हो, 90 डिग्री एंगल पर लग रहा हो। तो ये फोर्स भी डी परपेंडिकुलर के 90 डिग्री है और ये वाला फोर्स भी डी परपेंडिकुलर के 90 डिग्री एंगल पर लग रहा है। तो अब इस फोर्स के, इस केस के और इस केस के कैलकुलेशन में जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों फोर्सेस देखो है कैसे, इन दोनों फोर्सेस में कुछ खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू फोर्सेस, that the two are equal. They are the two forces are equal, opposite, देखो एक दूसरे के उल्टा लग रहे हैं, opposite,
और थर्ड, एक्टिंग at two different points of same object. एक ही पेंसिल पर लग रहे हैं लेकिन उसकी दो डिफरेंट पोजीशंस पर लग रहे हैं, ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं. Such two forces are called कपल. तो ऐसे दो फोर्सेस जो इक्वल हों, ऑपोजिट हों और एक ही ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पोजीशंस पर लग रहे हों, ऐसे दो फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल. एंड टॉर्क अप्लाइड बाय अ कपल इज कैलकुलेटेड बाय एनी वन फोर्स multiplied by distance between the two forces. Any one force multiplied by distance between the two forces. तो टॉर्क ऑफ कपल इस तरीके से कैलकुलेट होता है और टॉर्क ऑफ सिंपल सिंगल फोर्स इस तरीके से कैलकुलेट होता है. ये दो तरीके हमने दिखाए तुम्हें. ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में एक फोर्स भी यूज हो सकता है. उस केस में जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो फिक्स होगा और दो फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं. उस केस में ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है. तो डी परपेंडिकुलर, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कपल लग रहा हो तो डी परपेंडिकुलर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम उस यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के सेंटर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के टर्निंग मोशन को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वो कितनी ताकत से टर्न हो रहा है बाय अ फोर्स और बाय two forces. So now you just pause the video and note all important informations. What is couple? What is torque? Torque is also known as movement of force. This torque, which is represented by Greek alphabet tau, it is also known as torque or movement of force. क्लियर हुई इतनी बात? अब हम एक और तरीके का ऑब्जेक्ट लेते हैं. यहाँ तो हमने ऑब्जेक्ट का जो शेप था ना, वो देखो लेंथ ज़्यादा थी, थिकनेस कम थी. दोनों ही केसेस में हमने एक स्टिक ली थी और एक पेंसिल ली थी. इस तरीके का ऑब्जेक्ट था. अब सोचो कि अगर मैं एक स्फेयर लूँ, ऑब्जेक्ट है ना जिसमें वॉल्यूम है, या मैं एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट ले लूँ, तब उसके टर्निंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ये भी सीख लेते हैं. अब ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में बेसिकली हम इस डिस्क शेप ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं. जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी तो यहाँ पर मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखो अपनी हाथ से, तो ये ऑब्जेक्ट घूमने लगा. ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में ये जो वाइट लाइन है ना, इसके एंड पे मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रखूँ और अब मैं इसे घुमा रही हूँ. अब मैंने जो फोर्स लगाया है वो कितनी ताकत से इसको घुमा रहा है, दैट इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम इस ऑब्जेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढ पा रहे हैं? ये जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? ध्यान से देखकर बताओ, किस पॉइंट के अबाउट ये तुम्हें घूमता दिख रहा है? सेंटर के अबाउट. क्लियर हो रही है बात? पॉइंट ऑफ रोटेशन जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई फोर्स कितनी ताकत से उस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है.
तो ये रहा पॉइंट ऑफ रोटेशन। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमने क्या रखा था, ये यहाँ। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो ये है मेरा फोर्स जो यहाँ अप्लाई हो रहा है, और ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये असल में इस डिस्क शेप सरफेस की रेडियस है, और जो हम फोर्स लगा रहे थे वो कैसा था, टेंजेंट था। देखो ये जो सरकमफरेंस है इसके ऊपर ये फोर्स कैसा है, टेंजेंट है ना, मैथ्स में पढ़ा है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल परपेंडिकुलर एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है रेडियस और टेंजेंट के बीच का। तो ये है हमारे फोर्स की डायरेक्शन, और ये है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये है डी परपेंडिकुलर। तो अगर शेप ऐसा हो तो हम रोटेशन इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम उसे पेपर पे समझेंगे। So now we are taking a disc or a cylindrical surface or a spherical surface, and force is applied tangentially to the object, and this distance from the center, because the object is now rotating about the center of the object. So this is point of rotation, this is point of application of force, and the radius is d perpendicular. So turning effect of this object, this force will be, we take it as radius r. So turning effect will be force into d perpendicular, that is force into radius of this circular disc. Getting how to calculate in different cases turning effect of force. हमेशा हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन ढूंढना होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ढूंढना होगा क्वेश्चन में, और फिर उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मिलेगा। तो अब इन तीनों केसेस में एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। इस बार एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं। Now this time Mr. Smiley is our object, ठीक, और ये इस स्टेप को चढ़ना चाहते हैं, तो हम इस पर फोर्स लगा सकते हैं। हम इस पर फोर्स ऐसे लगा सकते हैं, देखो, है ना। फोर्स तो हर हालत में टेंजेंशियल ही लगेगा। मैं इसको देखो कैसे फोर्स लगा रही हूँ। मैं एक्चुअली अगर मैं तुम्हें कहूँ तो मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ ऊपर की ओर, ये देखो, तो ये स्टेप ऊपर रोल कर जा रहा है बॉल। अब हमें इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ढूंढना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना इसे कि पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है, इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। मेरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है। At this point my force is tangentially upward. मेरे फोर्स के भी डायरेक्शन को देखोगे तो समझ आएगा कि ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पे मेरा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। देखो ऊपर की ओर है ना, तो जो एरो फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसको मैं यहाँ पर अप्लाइड करूँगी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस फोर्स की वजह से जब ये मिस्टर स्माइली रोल करते हैं स्टेप पर, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है? दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। देखो ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं ऐसे,
और ये दोनों पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये दोनों डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं। मेरी दोनों फिंगर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन असल में इस स्फीयर का डायमीटर है, इसको ध्यान से समझो। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लाइक दिस, ठीक। और इसके ठीक डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर ये देखो, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो डायमीट्रिकली ऑपोजिट दीज टू पॉइंट्स, diametrically opposite these two points, one is point of application and one is point of rotation, and this object is rotating about these 2 points. Getting the point? तो ये जो diameter of the sphere है ये d perpendicular है इस केस में। कुछ समझ आ रही है बात बेटा? इसको हम अगर पेपर पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं। Now observe this ball which was trying to move on this over this step. अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को करके देख रहे थे। यहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा था और इस पॉइंट के अबाउट ये बॉल घूम रही थी, रोटेट करके ऊपर जा रही थी। याद करो। Now observe this whole with help of the diagram. This is the point of application of force and this is the point of rotation, and the ball is rising up the step. So the turning effect of my force will be this force into distance, perpendicular distance between point of rotation and point of application of force, that is diameter of this ball. और अब हमको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम पॉइंट ऑफ रोटेशन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये बॉल इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तब ये ऊपर चढ़ पा रही है ना। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन दिस केस इज फोर्स इनटू perpendicular distance, that is force into this diameter. If this is center, this is radius r, then diameter is 2 into radius. So this is turning effect of force when this ball or sphere wants to move about this point, और ये स्टेप को इस तरीके से ऊपर जाना चाह रहा है और फाइनली ये यहाँ पर आ जाता है। So ball finally moves this one step up by rotating about this point, and this is turning effect of force. Now we move to numerical, and while we are solving numerical, I would like you to draw all these diagrams. This diagram, the way we are calculating torque, then these diagrams, this whole discussion. Pause your video and note down the whole discussion, that is very important and conceptual. These diagrams, how we are calculating the torque in this case, and then torque in this case, and then we will move to numericals.